Hello, good evening everyone. Today we will study the chapter number 1 of class 12, Circular Flow of Income. We'll look at this point first. Firm produce goods and services with collective effort of factor of production supplied by the household sector. फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन. These factor production supplied by the household sector. Factor production means land, labor and capital. The second one is firm make payment to the factor of production in the form of rent, wage and interest. Firm क्या करती है, provide the payment of factor production in terms of rent, wage, interest and profit, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम. थर्ड है हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड दिस मनी ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. राइट, द फर्म दैट प्रोवाइड फैक्टर पेमेंट इन टर्म्स ऑफ रेंट, वेजेस, interest, so that income is spent by the household sector on the purchase of goods and services. Now look at this. Thus income flow first from firm to household in the form of factor payment and then from household to firm in the form of consumption expenditure. Such flow of money is known as the circular flow of income. तो what does it mean? Circular flow means कि मनी जो है सबसे पहले फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ मूव करती है इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट. देन व्हेन द फर्म get the money, he spent that money on the purchase of goods and services. In that case, that money moved from household sector to again firm. So this type of flow of the money is called circular flow of income. Now look at this meaning of circular flow of income. It refers to a cycle of generation of income in the production process. It distributes among the factor of production and finally it circulates from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. हाँ, तो सबसे पहले क्या होता है कि इस साइकिल मीन्स जो मनी का सर्कुलेशन हो रहा है फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, हाउस होल्ड सेक्टर से अगेन फर्म की तरफ. तो इस साइकिल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकम जनरेट की जाती है. किस तरीके से? विद दी प्रोडक्शन प्रोसेस. फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है विद दी हेल्प ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल. राइट, आफ्टर दैट ही पेमेंट टू दी हाउस होल्ड सेक्टर in terms of rent, wage and interest. When household sector received that payment, he spent that money on the purchase of goods and services. Right? So he again pay the money to the firm. So this type of circulation is called circulation flow of income. Next, okay, move to the forward. The next is the phase of circular flow. So there are three different phases: generation, distribution and disposition in circular flow of income. Number 1, generation. जैसा कि नेम से सजेस्ट होता है, जनरेट करना. In this phase, firm produce goods and services with the help of factor services. राइट, फर्म ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चर किया. एक पेन का गुड्स मीन्स सपोज एक पेन है, पेन का मैन्युफैक्चर किया विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज व्हाट? लैंड, लेबर, कैपिटल. लैंड, राइट, लैंड, लेबर एंड कैपिटल
entrepreneur. These are the factor service. Now let's look at the second phase, distribution. Distribution phase में क्या होता है कि the income that is generated by the firm, so now this income is distributed in terms of factor income. Factor income यानी rent, wage and interest, profit from farm to household, राइट. जो इनकम जनरेट की है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर. कौन करेगा? फार्म. नेक्स्ट थर्ड है डिस्पोजिशन. डिस्पोजिशन मीन इनकम को कंज्यूम करना. हाउस होल्ड सेक्टर इनकम को कंज्यूम करेगा. कैसे करेगा? ही स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फार्म, राइट. वो पैसा खर्च कर देगा on the purchase of goods and services that is produced by the firm. तो इस तरीके से these are the three phases of circular flow of income: generation, distribution and disposition. Now look at the next, stock and flow. Stock and flow we will skip this one and do this difference between stock and flow. The meaning is same and this is given in a tabular form. Is easy with particular that. Okay, so you also do this one, stock and flow. What is a stock? Stock variable refers to that variable which is measured at a particular point of time, right. वो वेरिएबल यानी वो चीज़ें जिनको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक. फॉर एग्जांपल लाइक जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31st 3/18. पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड पे मेज़र कर रहे हैं कि पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की, ठीक है. योर बर्थडे इज़ ऑन 1st of July, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. सेकेंड है द सप्लाई ऑफ मनी. एक पर्टिकुलर डेट हमने दे दी कि इस डेट पर मनी की सप्लाई कितनी थी, तो ये है स्टॉक. फ्लो में क्या होता है? फ्लो वेरिएबल रेफर टू द वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक पीरियड होता है टाइम, जैसे कि सपोज आई से कि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018 में कितने बच्चों का जन्म हुआ, पूरे एक साल की बात कर रहा है 2018. देयर इज़ नॉट अ स्पेसिफिक डेट मेंशन, राइट. इसने 2018 बोला है कि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018 में एक साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया. नेक्स्ट है मारुति कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द जनवरी 2019. जनवरी 2019 मतलब पूरे एक मंथ में कितनी कार मैन्युफैक्चर हुई, तो यहाँ पे एक पीरियड गिवन है, राइट. सपोज अगर यही बोलते कि मारुति कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग 1st January 2019, then this is a stock concept. Okay. सेकेंड पॉइंट देखो, इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन. इसके अंदर टाइम डायमेंशन नहीं होता, राइट. बट इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम डायमेंशन हो गया 2018, 2019, राइट. बट देयर इज़ नॉट अ टाइम डायमेंशन. थर्ड है इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट. स्टैटिक मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड है, स्टैटिक, चेंजेबल नहीं होता, मूवेबल नहीं होता. बट फ्लो में क्या होता है? इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट. ये चेंज होता रहता है, ये डायनेमिक है, राइट. एग्जाम्पल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31st 3/18. टोटल नंबर ऑफ मारुति कार इन दिल्ली. मनी सप्लाई इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. नेशनल वेल्थ एक पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पे मेजर करते हैं. क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर. फ्लो में नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018. सेकेंड मारुति कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द जनवरी 2019.
एक्सपेंडिचर और ट्रांजेक्शन इन मनी, नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ये ध्यान में रखना है, नेशनल इनकम, क्योंकि हम एक साल में मेज़र करते हैं कि इन 2025 में नेशनल इनकम क्या थी पूरा एक साल में, राइट। दैट्स वाई नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। बट नेशनल वेल्थ जो है पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर मेज़र करते हैं कि पर्टिकुलर डेट पर हमारे पास कितनी वेल्थ थी। या types of circular flow, that concept I already explained you in my previous video, so you can check this. Okay, now we do the next one, real flow and money flow. What is the real flow? Real flow क्या होता है? It is the flow of goods and services between firm and household. द रियल फ्लो में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है बिटवीन टू सेक्टर, फर्म एंड हाउस होल्ड सेक्टर. देर इज नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मनी, राइट. एंड मनी फ्लो क्या है? इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में जब मनी का फ्लो होता है इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इसको बोलते हैं मनी फ्लो. नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट है. इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, जैसा कि नेम से सजेस्ट होता है. थर्ड है देयर मे बी डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज. बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ गुड. तो बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास एक फिक्स यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती है. मतलब हमारे पास जो गुड्स है और आपके पास जो गुड है, मेरे पास एक काव है, आपके पास गॉट है. मुझे आपसे गॉट लेनी है, तो मुझे नहीं पता, एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है कि मैं आपको कितनी गॉट दूँ इन एक्सचेंज ऑफ काव. तो ये प्रॉब्लम फेस होती है इन रियल फ्लो में. बट इन मनी फ्लो में, बिकॉज देयर इज़ नॉट अ बार्टर सिस्टम, देयर इज़ अ मनी इन्वॉल्वमेंट, तो देयर इज़ नो सच डिफ़िकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो. क्योंकि हमें पता है कि एक काव की कीमत क्या है, एक गॉट का प्राइस क्या है, तो वी कैन ईजिली एक्सचेंज, राइट. एंड द लास्ट इज इट आल्सो नोन एज अ फिजिकल फ्लो. रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं एंड मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं. नाउ लुक, दिस इज द लास्ट topic, the circular flow in a simple economy, two sector economy. This is the last and important question of this chapter. Household are the owner of the factor of production and consumer of goods and services, right. तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या बोलते हैं हम? ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. बिकॉज क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ही सप्लाई करता है लैंड, लेबर, कैपिटल टू दी फर्म and consumer of the goods and services. Household sector is a consumer of goods and services, right. जो goods firm produce करता है उसका consumption कौन करता है? household sector. next है the firm produce goods and services and sell them to the household sector, right. firm production करता है goods का, then उसको sell करता है to the household sector को. So it is the simplest form of closed economy in which there is no government sector and foreign trade. तो ये हमने assumption किया है कि हम closed economy को पढ़ेंगे. यहाँ पर government sector नहीं है और ना ही foreign sector है. closed economy क्या होता है? closed economy is an economy which has no economic relation with rest of the world, right. rest of the world यानी हम जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वो केवल अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही कर रहे हैं, राइट. विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ हम ट्रेड नहीं कर रहे. रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ किसी भी तरीके का व्यापार नहीं कर रहे हैं. तो इसी को बोलते हैं हम क्लोज्ड इकोनॉमी. और ओपन इकोनॉमी क्या होती है? जब हम अपने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को बाहर की फॉरेन कंट्री के साथ भी करने लगते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी. बट ये जो सर्कुलर फ्लो है हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर हो रहा है. तो देयर इज ओनली टू सेक्टर, राइट. सो
look at this first point. There are only two sectors in the economy, household and firm. It means there is no government and foreign sector. Number 2 point, household sector supply the factor services only to the firm and firm hire factor service only from हाउस सेक्टर. आपको क्लियर हो गया होगा, इस चैप्टर में बार बार ये टर्म यूज़ हो रही है, फैक्टर सर्विस, फैक्टर पेमेंट, राइट. तो just wait. So first look at this outer arrow that move household sector to firm. Household sector provide the factor services in terms of land, labor, capital and enterprises to the firm. Then firm provide the goods and services. Firm use the factor services and manufacture the goods and supply these goods and services to the हाउसहोल्ड सेक्टर. तो इस आउटर लूप को, आउटर लूप यानी जो आउटर जो एरो है, इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो, राइट. बिकॉज यहाँ पर मनी का फ्लो नहीं हो रहा, देयर इज़ अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज. नाउ लुक दिस इनर आउटलुक. इनर आउटलुक मीन्स दिस, लुक एट दिस डायग्राम arrow that is move from this inner diagram, this one. Okay, firstly point number 3, the firm produce goods and services and sell their entire output to the household. ठीक है, फर्म ने ये गुड्स प्रोड्यूस की और किसको सेल कर दी, हाउस होल्ड सेक्टर को. लुक एट द फोर्थ पॉइंट, हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम from their services and spend the entire amount on consumption of goods and services. Look this arrow, this one, inner loop. फर्म के पास, फर्म ने पैसा दिया हाउस होल्ड सेक्टर को इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट, राइट. देन हाउस होल्ड ने यही पैसा खर्च कर दिया ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Now look at the fifth point. There are no saving in the economy. Neither the household save from their income nor the firm save from their profit. तो ऐसा अज्यूम करके चले हैं कि ना हाउस होल्ड सेक्टर मनी सेव करेगा ना ही फर्म. ठीक है, जितना भी पैसा हाउस होल्ड और फर्म के पास है वो सारा का सारा खर्च कर. तो आपको क्लियर होगा ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. आई अगेन एक्सप्लेन. The circular flow in two sector economy can be better understood with the help of figure 1.4. The outer loop, look at this, the outer loop of diagram show the real flow of factor service from household to the firm and corresponding flow goods and service from firm to the household, right. The inner loop show the money flow of factor payment from firm to household and corresponding flow of consumption expenditure from household to, जैसा इस डायग्राम में है. These are the outer loop and this is the inner loop. Outer loop show the real flow and inner loop show the money flow, right. सो गाइज हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ. इस पूरे चैप्टर में एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी टू सेक्टर, जो हमने अभी पढ़ा है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट. ओके, थैंक यू गाइज. प्लीज़ कमेंट करना कि आपको कैसा लगा वीडियो, आप मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है कि नहीं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.